And on this subject, our only and only very honorable and experienced CA Bejanji with us. Though there is no need to introduce him, he is a well known to each and everyone. But for the sake of new member who joined us from all across the country, I would like to read out briefly his profile. CA Jain sir has been a man of prudence, veracity, and intelligence since birth. Academically brilliant, he is a rank holder in both CA Inter and CA Final, a triple bachelor degree holder. He completed his Bachelor of Science from Punjab University in 1973, a true follower of continuous professional education. After completing his chartered accountancy in 1976, for the love of the subject, he did his Bachelor of Arts in Economics in 1979. He also completed his Bachelor of Law in 1980. His expertise thus is not limited to just one, but all the four subjects, that is science, economics, law, and accountancy, a rare combination. A fellow member of ICI for more than 3 decades, he was elected to the Central Council of ICI for the first time in 2004 and thereafter in 2007. On 5th February 2007, he was elected by the council as its vice president and was further elevated to the post of the president on 5th February 2008. During his tenure as president, the ICI has earned various credentials which embark a new era of professional development. And appreciated by the government of India. The Satyam episode happened during his tenure of president, the Institute of Chartered Accountants of India. He was instrumental in handling the biggest ever fraud in the corporate sector and working out the plan for revival of the Satyam and the two associate companies closely with the government of India. This helped taking over the board of the affected companies and ensuring continuance of the business and job of thousands of employees. Immediately after his tenure as president of ICI, he was assigned the job of reviving, managing the two associate companies of Satyam and was appointed government nominee director on the board. He successfully managed these companies and revived the same. In this process, he saved thousands of crore of the banks which have lent money, execution of infrastructure projects of national importance, and also ensured homes for more than 900 families which have been invested their lifelong savings with these companies. He is regularly involved in the consultation process of the Ministry of Finance and Ministry of Corporate Affairs and member of various expert committee panel constituted by the Government of India for physical and commercial legislation. On corporate forum, he has been founder board member of Indian Institute of Corporate Affairs set up by Ministry of Corporate Affairs, Government of India. He was on the board of International Federation of Accountants, IFAC, during 2008-11 and global organization for the accountancy profession comprising of 167 member and associates in 127 countries. He has more than 4 decades of experience on advising corporates on finance and taxation matters. Sri Jain sir is specialized in direct tax and has handled complicated tax matter, appeals and tax planning of big corporates. A prolific writer having command in Hindi, English, French, Urdu and Punjabi, has authored many books on direct tax and regularly contributes articles in various journals, newspaper and frequently participates in various television debates, program on economics, finance and tax issue. Presently, he is independent director on the board of DLF Limited, Invensia Healthcare Limited, and also chairman MCX Clearing Corporation Limited. During the earlier year, and he has hold so many positions in a various prestigious organization. I am skipping all this with due permissions of Jain sir. With this, I once again welcome sir and welcome all Kohli Saab, Dhamijaji, Jagjit and all, and over to Jain sir. Thank you, sir. Thank you, Rajesh ji. Thank you, Kohli Saab, Dhamija ji, Jagjit ji, and all my dear friend, professional colleague who have come here and got to hear me, my views on the budget 2021. Rajesh ji has been chasing me like anything for the last at least 1 year, I will say. Sir. And time and again, he has been requesting me, sir, मेरे लिए तो time निकाल दो, मेरे लिए तो time निकाल दो.
लास्ट वीक मैंने बात की कि मैंने कहा चलो भाई अब की बार कर लेते हैं, टाइम निकालते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं। मुझे लगता है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अगर सेमिनार प्रोग्राम करने का किसी को अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो राजेश अग्रवाल जी को मिलेगा। इतने प्रोग्राम इतने वो करते हैं, और मैं तो आज हैरान हूँ कि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कितने पार्टिसिपेंट हैं इस बजट में। आज बजट को आए कितने दिन हो गए, और 5 दिन बजट को आए हो गए, और अभी भी लोगों का इतना इंटरेस्ट बजट के अंदर, इतना सुनने की बातें। मुझे लगा कि बजट तो पुराना हो गया, कौन सुनना चाहेगा, क्या इश्यूज आएंगे। लेकिन अभी भी मैं देख रहा था क्वेश्चन आंसर में चतुर्वेदी साहब ने एक बड़ा अच्छा सा मुझे आइडिया दिया उसके बारे में। बोले जैन साहब पहले ये बताइए आपने जो 31 जनवरी को एनआरसी प्रोग्राम में एक्सपेक्टेशन दी थी उसमें और इस बजट में क्या फर्क है, पहले वो डिस्कस करो, बाद में बताना इस बजट के अंदर क्या हुआ। चतुर्वेदी साहब हैं इसमें प्रोग्राम में? हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। आज फ्राइडे, इतना इवनिंग, इतना सुंदर मैच चल रहा है, कोई इंडिया आउट नहीं कर पा रहा है इंग्लैंड को, वो बात अलग है, और फिर भी आप कह रहे हो बजट सुन लेते हैं उसके बारे में। और बजट को आए हुए इतने दिन होने के बावजूद भी बजट में इंटरेस्ट बना रहा, ये बना रहा, वो करता रहा। एक बात तो सब देखो, आप सबको माननी पड़ेगी कि अब की बार बजट बड़ा इंप्रेसिव बजट आया है, और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस तरह से इस मुश्किल को हैंडल किया है, आई थिंक हेड्स ऑफ टू हर, एंड आई बिलीव ऑल क्रेडिट गोज टू हर एंड हर टीम, द वे इट हैज बीन प्रेजेंटेड एंड द वे इट हैज बीन वर्कड आउट। जैसे हमें 2020-21 के अंदर कोविड आने के बाद उम्मीद थी, जब 1 फरवरी 2020 को जो उन्होंने बजट प्रेजेंट किया था उसमें बहुत सारे इशू थे, लेकिन मार्च में जो 2020 में कोविड आया और सारा एक्टिविटी सस्पेंड हो गई, लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, एवरीवन वाज वरीड अबाउट क्या होगा, देश की इकोनॉमी कैसे चलेगी, ये चलेगी। और आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी ने थोड़ा सा रिवाइवल दिया सितंबर ऑनवर्ड, और जब बजट 1 फरवरी को प्रेजेंट होना था, सबके मन में बड़ी भारी उम्मीदें थी कि भाई क्या करेंगी वित्त मंत्री, कैसे करेंगी। लोगों को चिंता थी कि भाई टैक्स आए नहीं है, इनकम है नहीं सरकार की, तो बहुत भारी टैक्स लगेंगे, कैलकुलेशन लगेंगी, ये लगेंगी, वो लगेंगी। और जो उम्मीदें थी कि भाई इस बार कुछ ना कुछ मेरी उम्मीदें पूरी होनी चाहिए, और 2-3 उम्मीदें तो मेरी भी थी, जो चतुर्वेदी साहब ने कहा, बताइए 31 जनवरी को मैंने क्या कहा था। मैंने 2-3 बातें कही थी, भाई देखो आज की डेट में बजट को देखते हुए अगर वो एग्जम्पशन और डिडक्शन की बात करें तो एटीडी मेडिक्लेम के बारे में डबल कर देना चाहिए थोड़ा सा, उनका मेरा आइडिया था। एलटीसी की स्कीम जो लास्ट ईयर दी थी वो एक्सटेंड करके और लोगों के लिए भी लगा दी जाए, और इस साल में दे दी जाए, कोई बुरी बात नहीं है प्राइवेट सेक्टर के लिए। और साथ में ये भी कहा था वर्क फ्रॉम होम की बेनिफिट डिडक्शन दे देनी चाहिए, जो एम्प्लॉय घर बैठ के खर्चा करता है, मिट आउट करता है, वो एम्प्लॉयर का खर्चा नहीं होता, एम्प्लॉयर उसको रिइंबर्स करता है, तो वो खर्चे की डिडक्शन मिल जानी चाहिए, एज अलाउंस दे दिया जाए। बड़ा मुश्किल होता है कैलकुलेट करना। अगर आज मैं वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहा हूँ तो बिजली यूज कर रहा हूँ, एयर कंडीशनिंग यूज कर रहा हूँ, अपना घर का फर्नीचर यूज कर रहा हूँ, कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, बच्चों की सर्विस ले रहा हूँ, चाय या पानी अपनी पीता हूँ जो ऑफिस में ऑफिस वाले पिलाते हैं, तो वो सारे बेनिफिट। लेकिन और एक साथ में मैंने 2 बातें और कही थी। मैंने ये भी कहा था कि भाई सरकार हो सकता है कि अब की बार कोई एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस को 4% से बढ़ा के 6 कर दे, 7 कर दे, उसमें कह दे कोविड टैक्स भी आ गया, इसमें कोविड सेस भी आ गया। ये नहीं आएगा तो सरचार्ज लगा दे। सरचार्ज मुश्किल था क्योंकि ऑलरेडी 37% लगा हुआ था। मेरी ऐसी उम्मीद थी भी कॉर्पोरेट में 22% का रेट किया है, सरकार की काफी कलेक्शन डाउन है, तो कह दे कि 1 साल के लिए मैं एक्सेप्शन करके 22 को 25 करना चाहती हूँ। शी वुड हैव डन सेड इट लाइक दिस। तो बाकी उम्मीदें थी हर क्षेत्र को, भाई लोगों को एग्रीकल्चर में बहुत कुछ मिलेगा, इरिगेशन में बहुत कुछ मिलेगा, फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ मिलेगा, डेवलपमेंट के लिए बहुत आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत आएगा। एक बात आपको माननी पड़ेगी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया खूब सबको। 1 फरवरी को 11 बजे जब बोलना शुरू किया और 12:30 बजे तक लगातार शी वेंट ऑन अनाउंसिंग वन आफ्टर द अदर कि भाई इतने इसको, इतने 1000 करोड़ इसको, इसने। और अब की बार कोई भी फिगर सैकड़ों में नहीं थी, सब हजारों से ऊपर थी। बहुत दिया, एजुकेशन को दिया, हेल्थ को दिया, सैनिटेशन को दिया, स्वच्छ को दिया, सबको दे दिया। जब इतने पैसे बट रहे थे तो लोगों को लगा यार कुछ ना कुछ और भी आएगा, उम्मीदें थी बड़ी बढ़ने की। एक उम्मीद सबकी तोड़ दी उसने। जो सबको उम्मीदें थी वो उम्मीद किसी की नहीं आई, पूरी करी उसने। लेकिन मजे की बात है वो उम्मीद पूरी ना होने की वजह से निराश कोई भी नहीं, क्योंकि जब वो प्लीजेंट सरप्राइज हुआ, स्पीच खत्म हो गई, पता लगा उम्मीद थी ये आ रहा है, नहीं आया तो अरे बड़ा आराम हो गया। उम्मीद तो थी लेकिन निराशा नहीं हुई। टैक्स नहीं लगाया, कोई सरचार्ज नहीं लगाया,
इनकम वहीं के वही रह गई बिल्कुल। जो आपने 2020-21 की फाइनेंशियल ईयर के 21-22 की जो असेसमेंट की टैक्स की कंप्यूटेशन करोगे, वही कैलकुलेटर, वही फार्मूला एक्सेल में डाल रखा, कहीं और डाल रखा, रेडी रेकमेंड में डाल रहा, वही यूज हो गया है। मजे की बात है, उसने किसी एग्जम्पशन रेट तो बात दूर रही, एग्जम्पशन डिडक्शन को भी नहीं छेड़ा। अदरवाइज किसी भी कोई डिडक्शन छेड़ देती है एटीडी की, तो सारे रेट का कामयाब हो जाते हैं, कंप्यूटेशन चेंज हो जाती है, इसकी बेनिफिट मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, नथिंग डूइंग। आप सब लोग घर जाओ, मजे करो, पिछले साल के कैलकुलेटर उठाओ, कंप्यूटर उठाओ, वही काम आ जाएगा। और टैक्स पेयर अगर आपको होशियार होगा तो आपसे रिटर्न भी भरवाने नहीं आएगा, कहीं बाबूजी पिछली वाली रिटर्न देख के भर लूंगा। मजे करेगा वो, कह रहे आपसे क्या करना है, आपने कैलकुलेशन करनी, मैंने पता है, वो वही फिगर है मेरे पास, तो मैं बदल दूंगा वहां पे कंप्यूटर में फिगरों को, वहां सैलरी की जगह सैलरी लिखूंगा, इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट लिखूंगा, भर दूंगा, और अपना कैलकुलेशन टैक्स तो अपना भी वही फिगर आ जाएगी, लास्ट ईयर वाली निकल कर आ जाएगी। कुछ नहीं करना है कि चेंज करने की जो। दैट वाज आई थिंक हेड्स ऑफ टू आवर्स, किसने जिस ढंग से उसको चेंज किया। साथ के साथ रिफॉर्म्स के बारे में मैं ये मानता हूं कि जो ये अनाउंसमेंट 1 फरवरी की थी, they were in the line what was done way back in 1992 and way back in 1997। उसके बाद अगर रिफॉर्म्स का कोई अगर आया तो ये आया। मुझे लगभग 25 साल से ज्यादा हो गए बजट के ऊपर बोलते हुए, उसका एनालिसिस करते हुए करते हुए। कुछ बजट ऐसे हैं जिनकी मेमोरीज लंबी होती हैं, कुछ के स्वाद बहुत मीठे होते हैं, कुछ कड़वे वाले भी होते हैं। तो मीठे वाले स्वाद तो 1991 मनमोहन सिंह जी ने जो बजट दिया 1992 का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। 1997 में चिदम्बरम साहब ने जो बजट दिया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। उन्होंने टैक्स रेट में बहुत भारी रिडक्शन की थी, चेंज किया था। उसके साथ साथ जो 2012 में जो बजट आया था प्रणब मुखर्जी का, वो बजट याद करने वाला, लेकिन उसकी पेन जो है वो आज तक नहीं गई देश को। उसकी जो उससे जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो इकोनॉमी पर आए या जो इन्वेस्टमेंट पर आए, चाहे वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई, या चाहे गार लगाने की कोशिश की गई, चाहे वो 68 को लाया, बट दैट हैज अफेक्टेड द इकोनॉमी लाइक एनीथिंग। कोशिश ये थी कि 2000 वाला बजट अनडू हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। रिफॉर्म तो अभी भी है। इस बजट के अंदर 3 मेजर रिफॉर्म मैं जो समझता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिफोर आई कम टू सम डायरेक्ट टैक्सेस इश्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक, उन्होंने जो जिस ढंग से इंडियन इकोनॉमी को खोलने की बात की है, बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। इंश्योरेंस सेक्टर, शी सेड कि नाउ एफडीआई विल बी अलाउड अप टू 74% एज अगेंस्ट 49। Management and control shall also lie with the foreign party, outside party in insurance, with the only one rider that majority of independent director etc shall be in India. That doesn't matter, but once a person is a shareholder up to 74% with management control, I believe he will be in the driving seat and working it out. That's a very big game change. She has announced not only LIC IPO, she said I will privatize one of the 4 general insurance company, United India General Insurance, ये जो न्यू इंडिया ये जिनकी है, she said I will privatize this company. This is also a very big change that the government want to do and get out of the business, and government want to like to manage and control the country rather than doing businesses itself. She said that I will privatize 2 public sector banks other than IDBI, which is already in the pipeline. So we can see the 2 banks getting privatized. That's a very big change. She has worked it out, and this is change reform she has introduced. And the 4th, which I think still has gone unnoticed, is that there can be more than one distributing company for power, electricity. Now the power electricity which we get at our home is the one sole power company which supply distributing company, whichever the company or public sector or private sector or state government owned undertaking may be. And this has caused a lot of pain to the consumer. I believe with the option being given to the consumer to pick up and choose out of that more than one distributing company, it will improve not only the quality of the power, voltage and otherwise, but also rate and efficiency otherwise. Because telecommunication, telephone is one of the area which has shown how privatization, and when you give an option more than one, competition. Now as on date, Reliance over Jio and this Airtel and Vodafone, you have an option, and everybody has to put best of the services. The moment you find a signals are poor, you will say, no, I will switch over to other. The rates, how great it is. Just compare the rate of the telephone connection or telephone charges used to be before 1995 and what are the rates today. It's a peanut only, and how the life has become easier. I'm reasonably confident same thing will happen in power, electricity.
consumer, not only the domestic, but also industrial, etc. They will be benefited a great a lot, and they can now select their power supplier to that. Yes, this will be the distributing company from whom I will like to have the power. It will reduce the cost, improve quality and efficiency. So these are the major changes which she has announced. And then in order to promote Indian economy, she has opened up various others correction like FDI, which she says investment by the sovereign wealth fund, the pension fund. She has given a concession for that also. And then she has also worked out that we have in Ahmedabad, the GIFT City, which we call International Financial Services Center. Now, a lot of concession has been given in the past, and this time also she is trying to attract all those funds which are operating in Singapore and Mauritius for carrying on activity with relation to the India, holding is in India. She says that in case you transfer all those funds to India, it will be absolutely tax neutral. बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि फंड सिंगापुर और मॉरिशस में बना लेते हैं और वहीं से बैठ के ऑपरेट करते हैं और इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते रहते हैं, वर्किंग करते रहते हैं और इनकम जब निकल जाती है। अब उसको यहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश है कि वो फंड इंडिया में आ जाए, इंडिया से ऑपरेट करें और फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से ऑपरेट करेंगे तो उनकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब वो ट्रांसफर करेंगे ओल्ड फंड से रिजल्ट नए फंड के अंदर, तो वो कैपिटल गेन ये सारे इशू आते हैं। नाउ शी हैज सेड कि अगर ऐसा करोगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, इट विल बी एब्सोल्युटली टैक्स न्यूट्रल ऑन दैट बेसिस। So I am believe that this will be a very big choice for the fund. With the why it will happen so, because if you are operating from Singapore and Mauritius and you want to take benefit of India under DTAA, there can be an allegation against you that you are not truly representative of Singapore or Mauritius, you are of some other country, and as such under MLI, the DTAA benefit can be denied. But with this, if your funds are operating in GIFT City, Ahmedabad, then you will not be taking benefit of DTAA, you will be taking the advantage of the Indian Income Tax Act. And once Indian Income Tax Act gives you a tax concession, then there cannot be any allegation against you that you are from which country or which not country, which clearly says you can come from any country, so long your manager are located in Ahmedabad and operating from there, so that can be given. And all those conditions have been relaxed for working out of them. Now, this can be, I believe, a very good operative mechanism which can help it out on that basis. So these are the few changes which I believe are on the tax bill. Now I can switch over to the income tax provision, etc. on this issue. As I said, the finance minister made no change in income tax rate, surcharge, etc., etc. When she didn't make any change, one of the worry could have been she would have said कि no change in income tax act. बहुत इजीली कह सकती थी कि मैं इनकम टैक्स में कोई अमेंडमेंट नहीं कर रही इस साल में। अगर ऐसा कर देती तो राजेश जी की समस्या बढ़ जाती और मेरी तो बढ़ ही जाती। ये प्रोग्राम क्या करते, बोले जैन साहब को बुलाना है, बोले क्या बोलेंगे जैन साहब, अमेंडमेंट है ही नहीं, क्या करेंगे। लेकिन जैसे होता है प्रचारक होते हैं मंदिर में और बात होते हैं, वो कहीं ना कहीं रास्ता कोई ना कोई एग्जाम्पल निकाल लेते हैं। यार बोलना तो है, 1 घंटा बोलना तो पड़ेगा जरूर, कुछ ना कोई रास्ता तो निकालो। और रास्ता निकालने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर इतना पैसा बांटती है, वो कहती है यार इनको भी कुछ दे दो, ये भी बोल लेंगे, नहीं तो कुछ करूंगी नहीं तो ये बोलेंगे क्या। अब की बार सारी अमेंडमेंट ऐसी है, बता दूं, प्रचारक को, बोलने वाले को कुछ बोलने का मौका मिल जाए, नहीं तो वो कहेगा मेरे पास कुछ नहीं है, आप पढ़ लेना, काम चलो। उन्हें मौका पूरा दिया और बोले अरे एक नहीं है, कितने, एक श्लोक नहीं रखे मैंने 79 श्लोक रखे हैं इसके अंदर, 79 क्लॉजेज हैं। जैसे होता है शास्त्र पढ़ने के लिए जो आते हैं ऋषि मुनि पढ़ने, बोले भाई कोई से श्लोक उठा ले, गीता के 5 श्लोक बोल देना, रामायण के कहीं से बोलिया ना, हो जाएगा काम, ये हो जाएगा। तो वो पाठ होते हैं ना, जगह जगह बनाते हैं कि ये पाठ, सुंदरकांड का बीच में कोई से किस्सा उठा लिया, कभी किसी का किस्सा उठा लिया, रामलीला। तो 79 क्लासेस दे दिए, मर्जी है बोलो जितना बोलिए, जितना टाइम है, एक क्लास में 1 मिनट लगाऊंगा तो 80 मिनट लग जाएंगे, आपके काम हो गया, बहुत बेस्ट है। अब क्या किया उसने, अब ये भी सुनेंगे भाई आप सुनाओ श्लोक, तो आप सुनाने पड़ेंगे, आपने बता तो दिया 79 श्लोक है, तो इसमें कौन कौन से श्लोक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो श्लोक सबने आपने सुन लिया होगा, भाई प्रोविडेंट फंड वगैरह में जो पैसे 2.5 लाख से ज्यादा जमा कराएंगे तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। आई एम ऑफ द व्यू बाय एंड लार्ज सारे लोग अफेक्ट नहीं होंगे, बहुत हाईली पेड सैलरीड क्लास एम्प्लॉय जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं वो एम्प्लॉय होंगे। लगभग 20,000 रुपए पर मंथ का अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो 2.5 लाख रुपए महीने का कंट्रीब्यूशन, साल का कंट्रीब्यूशन होता है।
उसके ऊपर जो इंटरेस्ट 7-8% मिलता है वो आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा देंगे सालाना तो उसके ऊपर लगेगा। ये उसी के ऊपर इंटरेस्ट टैक्स लगेगा जो 1/4/2021 के बाद दिया जाएगा। जो अब तक आपने दे दिया, जो पैसे जमा हो गए, उसके ऊपर कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और आप ये लोग पूछते हैं मेरे से, भाई ये ऑपरेट कैसे होगा, जब मैं दे दूंगा 2.5 दिए 3 दिए, कैसी कैलकुलेशन होगी? हम अकाउंटेंट है, अच्छा तो अपोर्शनमेंट करना बड़ा सिंपल से जा रहे हैं। कंप्यूटर में राजेश अग्रवाल जी का अकाउंट ए और अकाउंट बी दो खुल जाएंगे। आज की डेट में 31 मार्च 2021 को जो बैलेंस खड़ा वो अकाउंट ए में क्रेडिट हो जाएगा। 21-22 में जितने पैसे देंगे 2.5 लाख रुपए तो ए में चले जाएंगे, 2.5 लाख से ऊपर देंगे तो बी में चले जाएंगे। अब इनके दो अकाउंट हो गए। जब इंटरेस्ट क्रेडिट होने लगेगा 21-22 का, 21 जो ए वाले अकाउंट का इंटरेस्ट है वो तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, और जो बी वाले अकाउंट का इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन आ जाएगी। सरकार 194 में नोटिफाई करेगी और जो शेड्यूल में नोटिफाई करेगी वो टीडीएस की ऑब्लिगेशन लगा देगी प्रोविडेंट फंड ऑपरेटर के लिए कि आप टीडीएस काटेंगे, इतना जमा करा देंगे। दैट विल बी द बेसिस, आई बिलीव कैलकुलेशन विल बी डन। जब आपको पैसे मिले तो आप मजे करना। अब ये सवाल आ सकता है कुछ लोगों का कि भाई आप मेरा अगर उसको इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगाना शुरू करूंगा, मुझे मिलता तो है नहीं वो हाथ में, तो आप मुझे टैक्स कब करोगे? अगर गवर्नमेंट मेहरबान रही, क्योंकि 194A की अमेंडमेंट प्रपोज नहीं की इस बजट में, तो हो सकता है गवर्नमेंट ये कह दे इंटरेस्ट क्रेडिट होता रहेगा, लेकिन इसका टैक्स तब लगेगा जब आप इसको विड्रॉ करेंगे। गवर्नमेंट में कम आउट विद दैट पॉसिबिलिटी, बिकॉज देयर से एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। सो आई बिलीव 194A मुश्किल होगा अमेंड करने के लिए। ये कह सकती है कि जब आप विड्रॉ करेंगे तो पैसा इंटरेस्ट आएगा, लेकिन आपको मिल जाएगा। इसका स्टैटिस्टिकल डाटा कल कुछ गवर्नमेंट ने शेयर किया कि कुछ बहुत हाईली स्टेपेड एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने कुछ लाखों में नहीं करोड़ों में इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं हर साल, बिकॉज इंटरेस्ट तो एग्जम्प्ट होता है ना, आपने कर दिया कंट्रोल। तो उसको रोकने के लिए बेसिकली क्या है, it will be applicable to all, not private sector, it will be applicable to central government employees, state government employees, public sector undertaking, NGO, autonomous bodies, private sector, whosoever is there. So who's पीपीएफ के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि पीपीएफ पे ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन है वो प्राइवेट के लिए कि आप उससे ज्यादा 1.5 लाख वो कंट्रीब्यूट वैसे ही नहीं कर सकते उसके लिए, तो पीपीएफ पे तो लगेगा नहीं, पीएफ पर लगेगा। अब कल किसी ने सवाल पूछा मेरे से कि साहब मैं 2 जगह कर दूं, पीपीएफ में भी कर दूं, पीएफ में करता हूं, भाई वो तो छूट मिल ही जाएगी, क्योंकि इसकी रिस्ट्रिक्शन तो ये लगाई है, एनी पर्सन कंट्रीब्यूटिंग अमाउंट एक्सीडिंग ₹2,50,000 1 April 2021 onward, the interest on exceeding part will not be exempt. No, that is the only exemption has been withdrawn in section 10(11) and 10(12). 10(11) talks of statutory provident fund जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज भी होता है, और प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 जहां लगता है, और सेक्शन 10(12) टॉक्स अबाउट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अंडर द इनकम टैक्स। साथ के साथ एक और स्कीम है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप। यूलिप में when you contribute, it is also eligible for ATC because it is also considered to be one of the social security scheme, and this is also exempt under ATC. And what you invest, what you earn, and what you later on get, it fully exempt. But people, and the government thought process is that this ULIP comprises of 2 parts. One part of it goes in insurance, another part goes in investment. And people have been investing a lot, buying ULIP policy, more than 2,50,000 rupees, in order to remove this anomaly and not to allow a benefit of exemption under this section of in the income which is arising on ULIP. Particularly keeping in mind that last 2 years back, government had taxed long-term capital gain on share also at the rate of 10%. The government said that whatever you will invest exceeding ₹2,50,000 in respect of policy taken on or after 1 February 2021, 1 फरवरी 2021 से पहले जो आपने पॉलिसी ली हुई है, उसके अंदर जो आपने कोई 10 लाख 12 लाख पर ईयर की कमिटमेंट की है, वो आप कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, उसमें कुछ नहीं होगा, वो पूरा एग्जम्प्ट करेगा। लेकिन 1 फरवरी 2021 के बाद जो भी पॉलिसी लेंगे, 2.5 लाख से ज्यादा का जो प्रीमियम होगा, उस प्रीमियम को आपके ऊपर जब आप उसको बेचेंगे या आपको रिडेम्पशन आएगी, वो 10(10D) में जो छूट होती है वो नहीं मिलेगी। के बदले में वो एक्सीड 2.5 लाख से एक्सेस वाले अमाउंट को आपकी कैपिटल एसेट मान के इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। जो पैसा आपको मिलेगा उसके डिफरेंस को कैपिटल गेन माना जाएगा, और उस कैपिटल गेन को टैक्स सरकार 10% पे करेगी। इसका कारण यह है कि वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर्स में होता है, और लिस्टेड शेयर में करती है यूलिप के जो ऑपरेटर्स हैं, और वो जो गेन आएगा वो शेयर का गेन मान के 10% का टैक्स 112A में 10% का टैक्स करती है। कौन सी 10(10D) अमेंड कर दिया, अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा तो प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेशन हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो एक बार आप सपोज करो आपने 5 लाख रुपए साल की यूलिप ले ली है इसकी, तो 2.5 लाख आपका एग्जम्प्ट है, 2.5 लाख नहीं है, तो
तो जो भी रिडेम्पशन का अमाउंट मिलेगा तो 50-50 दोनों में डिवाइड होकर इसके ऊपर आपके 10% बैलेंस पे लग जाएगा. That's why I believe equity, fair and equitable. Consequential amendment has been made in section 48 to compute that our thing. Consequential amendment has been made in section 112A also, so that said that such game will be liable at 10% tax rate. These are the two changes which have been made regarding this income. इसके अलावा जो सरकार ने कुछ चेंजेस जो कि वो चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में किए हैं, just to enumerate it, not to go into nitty-gritty, because I have spoken on this issue a number of times on this issue. One is very simple: educational institution and hospitals which are run by a trust or institution which are not meant for profit, if they have a turnover up to rupees 1 crore gross turnover in a, then they are not required to get anything done thereafter. Their income is exempt. There is no obligation thereafter. Now this threshold was fixed long time back, and if you can look at the section 1023C 3AD, section 10 subsection 23C clause 3AD and 3A, these are two clauses under which this exemption is available up to prescribed. Beyond 1 crore rupees, if you want an exemption, then you need to knock at the Director General DG exemption, and he gives an approval normally for 3 years. Now, in order to mitigate the hardship by these small NGOs, the budget proposes to increase this threshold up to 5 crore rupees. So if your turnover is not exceeding 5 crore rupees, or gross receipt is not exceeding 5 crore rupees, then you not get an approval, etc. And you can safely, if you are an education or a hospital or mixed, both 5 crore rupees will be available. But if you are both, then 5 crore will be aggregate. This gives me an idea for tax planning. आप पूछेंगे जन साहब भाषण तो पढ़ के सुना दिया मैडम का, लेकिन आप टैक्स प्लानिंग कहाँ से आएगी? अब 5 करोड़ रुपए एक ट्रस्ट को एग्जम्पशन है. अब एक ट्रस्ट एक स्कूल खोल दे रोहिणी में, एक खोल दे शालीमार बाग में, एक खोल दे राजेश जी के यहाँ करोल बाग में, और 4-4 करोड़ रुपए की तीनों की रिसीट, तो 12 करोड़ ट्रस्ट की रिसीट हो जाएगी ट्रस्ट को, तो एग्जम्पशन, फिर तो डीजी एग्जम्पशन के पास जाने पड़ेगा. अब मैं पूछूंगा भाई क्या करेंगे, मतलब तुम 3 ट्रस्ट बनाओ, राजेश अग्रवाल ट्रस्ट ए इन करोल बाग, राजेश अग्रवाल ट्रस्ट इन शालीमार बाग, राजेश अग्रवाल रोहिणी, तीनों अलग अलग स्कूल चलाओ, और ट्रस्टी आप जो स्टडी सर्कल के ओनर एक एक दो किसी को बना दो, तो तीनों की टर्नओवर 5 करोड़ से कम, कोई जाने की जरूरत नहीं. कोई डिस्पेंसरी खोलनी है तो वहां खोलो, जितना चंदा आए लिया बांटा काम करा, स्कूल की रिसीट 5 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए. अब मैंने सरकार का आइडिया बता दिया कि भाई आप 5 करोड़ को, और 5 करोड़ इज रीजनेबली गुड अमाउंट. एक अच्छा सा स्कूल छोटा चलाना तो चल सकता है. 5 करोड़ बच्चों की रिसीट 40 लाख रुपए महीने की आएगी, 30-40 लाख रुपए की तो बड़े आराम से काम चल जाएगा. दैट्स an idea basically to work it out on that basis. This good move etc. लेकिन 3 अमेंडमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट में है जो आपको ध्यान करनी पड़ेगी. एक तो अब जो पैसा कॉर्पस के लिए आता है, 1023C में जो पैसा कॉर्पस के लिए आता है उसकी एग्जम्प्ट है. इसी तरह से 11(1)D में जो कॉर्पस वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कॉर्पस लिख के आता है वो एग्जम्प्ट होता है. कभी कभी जब एक मामला फंस जाता है डोनेशन का, तो लोग चिट्ठी ले आते हैं डोनर से लिखवा के मैंने कॉर्पस का दिया था, इसलिए मुझे 85% लगाने की जरूरत नहीं है. नाउ टू हैंडल दिस इशू, अमेंडमेंट हैज बीन प्रपोज्ड. Corpus is not to be utilized for the purpose of application of 85%. It has to be kept in a separate account in the one of the mode prescribed under section 11(5). आप इसका कोई पैसा खर्च करते हैं तो उसको 85% में काउंट नहीं किया जाएगा. ये जब ही काउंट होगा अगर सब्सिक्वेंट ईयर में उस पैसे को रिकूप कर दें. आपको आपने 1 साल में मिला वो कॉर्पस का आपने खर्चा, तो वो नहीं मिलेगा, उसका एप्लीकेशन माना जाएगा, रिकूप कर दिया जाए. सिमिलरली जिस साल में आप लोन लेंगे उस साल में अगर आपने वो वापस नहीं किया टू द एक्सटेंट, वो लोन आपका एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, उसमें से खर्चा किया हुआ. लेकिन अगर उसको आप रिकूप करते हैं, रीपेमेंट करते हैं लोन की आउट ऑफ द करंट इनकम और इंटरेस्ट, वो आपको माना जाएगा. जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी ली 50 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए का डोनेशन इकट्ठा कर लिया, 40 लाख का लोन ले लिया, तो प्रॉपर्टी हम ये कहते हैं हमारा 50 लाख अप्लाई हो गया. तो गवर्नमेंट की सरकार कहेगी नहीं, इसमें आपका लोन 10 लाख रुपए का, आपको 40 लाख का लोन है, नहीं होगा. अगले साल आपने इनकम करके 5 लाख की इंस्टॉलमेंट दे दी और 1 लाख का ब्याज भी दे दिया, तो वो 6 लाख आपका एप्लीकेशन बन जाएगा. दिस इज वन. थर्ड अमेंडमेंट विच चैरिटेबल ट्रस्ट की जो अफेक्ट कर सकती है वो है कि जो किसी साल में आपका एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो गया, तो नॉर्मली हम 85% के लिए उसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं. सपोज करो आपको 2 लाख रुपए का डोनेशन मिला और आपने खर्चा कर दिया 2.5 लाख रुपए का एक साल में, तो हम कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम 50,000 रुपीज. और नेक्स्ट ईयर में मुझे मिला डोनेशन 2 लाख रुपए का, खर्चा हो गया 1.5 लाख का,
तो 170 को कम करने के लिए मैं कहता हूँ नहीं 50,000 वाला पुराने वाला भी तो खर्चा मिला लो तो मेरे 85% पूरा हो गया। अब ये आप नहीं कर पाएंगे। कैरी फॉरवर्ड ऑफ एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम will not be allowed. That's another change which has been made. Coming to the head of the business income, now there are 3 changes which may be affect. एक तो सिंपल है गुडविल। तो सरकार को लगता है गुडविल बड़ा तंग करती है, लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं, तो गुडविल पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। सेक्शन 32(1) में इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर गुडविल नहीं है, लेकिन वर्ड का नो हाउ पेटेंट एंड एनी अदर एसेट ऑफ सिमिलर नेचर। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिफाइन करके उसको इंटरप्रेट करते हुए कह दिया था कि एनी अदर एसेट ऑफ सिमिलर नेचर विल गेट ए मीनिंग फ्रॉम द अर्लियर वर्ड्स, और गुडविल विल बी वन ऑफ द अदर एसेट विच विल बी एलिजिबल। और क्योंकि शेड्यूल में उसका रेट 25% दिया हुआ रूल के अंदर, तो वो 25% डेप्रिसिएशन मिलती है। तो जब बहुत सारी स्लम सेल होती है, परचेज होती है यूनिट की, तो आप उसमें उसकी टोटल वैल्यू जो फिक्स करते हैं यूनिट की, सपोज करो उसकी बुक वैल्यू है 2 करोड़ की, आपने कहा मैं 5 करोड़ में खरीदता हूँ ओवरऑल वैल्यू लगा के, तो 3 करोड़ रुपए को इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द वेरियस एसेट, तो नॉर्मली हम उसको गुडविल मान लेते थे और उसके ऊपर 25% की डेप्रिसिएशन क्लेम करते थे। अब गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुडविल कैपिटल एसेट नहीं होगी। गुडविल विल कंटिन्यू टू बी ए कैपिटल एसेट। इसकी नेचर ऐसी हो गई जैसे लैंड है। जब आप लैंड खरीदते हो, पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो इट विल कंटिन्यू बिकम लाइक जस्ट लाइक ए लैंड। आप बुक्स में रखिए, कंटिन्यू करिए, जब आप इसे बेचेंगे तो आपको कैपिटल एसेट की तरह माना जाएगा और डिफरेंस के ऊपर कैपिटल गेन का आपका टैक्स लगेगा। ये तभी लगेगा जब आपने गुडविल को परचेज किया पैसे देके, लेकिन आपने कोई अपने आप को रीवैल्यू करके या अपने आप में सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई वैल्यू प्लेस कर ली है बुक्स में, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, उसकी वैल्यू 0 मानेंगे जिन्होंने। और ये अमेंडमेंट जो गुडविल की है, ये 1/4/2020 यानी पिछले इस साल असेसमेंट ईयर से लग गई है। 1/4/20 के बाद भी करंट ईयर असेसमेंट ईयर के ऊपर भी ये छूट नहीं मिलेगी उसके बारे में। इसको ध्यान में रखते हैं सरकार ने सेक्शन 2 में जहां ब्लॉक ऑफ एसेट की डेफिनेशन उसको अमेंड किया, 32 में अमेंड किया, सेक्शन 48 में कंप्यूटेशन अमेंड किया, सेक्शन 50 में अमेंड किया क्योंकि गुडविल डेप्रिशिएबल एसेट मानी जाती थी, 55 को अमेंड कर दिया। सारी जगह सरकार ने कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट इसमें डाल दिए। दूसरी बात रही एम्प्लॉय से जो आप कंट्रीब्यूशन काटते हैं ESI PF का, सैलरी देके अगर उसका पैसा काट के आपने अपने पास रख लिया तो उस पैसे के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आपने ड्यू डेट से पहले जमा नहीं करा है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी ए मेजर चैलेंज कि एक दिन का भी डिफॉल्ट हो गया ESI PF जमा कराने में, तो आपको वो डिडक्शन फॉर ऑल टाइम टू कम चली गई। ये 43B में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन उसकी नहीं जाएगी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपने डिले कर दिया, 31 रिटर्न भरने से पहले जमा करा जाए तो मिल जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन है उसकी नहीं मिलेगी। आई एम फ्रैंकली ऑफ द व्यू दिस इज टू हार्श ए प्रोविजन। डिले डिफॉल्ट 2-4-5 दिन का, ये कहना कि एग्जेम्पशन फॉर ऑल टाइम टू कम चली जाएगी और आर्टिफिशियल इनकम बढ़ जाएगी और लेबर वेलफेयर मेजर, इट इज नॉट लेबर वेलफेयर। एनीहाउ द गवर्नमेंट हैज थॉट फिट टू गो अहेड। 43 CA की जो प्रपोजल थी वो फाइनेंस मिनिस्टर ने एक मिनी बजट जब नवंबर में दिया था तो कहा था कि in order to get rid of the inventory of the developer, so I'm giving a flexibility of circle rate from 10% to 20%. With a condition, it is available to developer only for a new residential unit, and that value should not exceed 2 crore rupees. That now has been put in proposal in 43 CA, and corresponding concession has been given to the buyer also under 56(2)(10). कोई buyer 22 नवंबर 2020 और 30 जून 2021 के बीच में कोई ऐसी प्रॉपर्टी फ्लैट ले रेंज यूनिट लेता है जिसकी वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होती है, बिल्डर से डेवलपर से लेता है और फर्स्ट अलॉटमेंट होनी चाहिए, सेकंड वो नहीं होनी चाहिए सेकेंडरी से, तो एकदम मिल जाएगी। इससे अच्छी एक और नई प्रपोजल आ गई दिल्ली वालों के लिए, तो कि दिल्ली की सरकार ने कहा कि भाई सर्कल रेट ही 20% घटा देते हैं, तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, 20% का सर्कल रेट ही कम कर दिया। तो अब इसके देखते हुए तो आज की डेट में 30% की कंसेशन हो गई लगभग, और इसकी 40 हो गई। कोई आज की डेट में जिस सर्कल रेट जिस प्रॉपर्टी का अगर 2.5 करोड़ था, तो उसका अगर आज की डेट में घटा के 20% का घटा के अब वो हो गया है 2 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ का रेजिडेंशियल, और ये 20% की कंसेशन यहाँ मिल गई, तो अब 1.60 में वो खरीद ले उसको, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, काम चल जाएगा उसके बाद। 1.60 नहीं, रिवर्स 20% 1.60 पे कैलकुलेट होता है, तो 1.60 ने 1.65 पे लेना पड़ेगा। 20% की वैल्यू कैलकुलेट होती है जो आप देते हैं, नॉट दी सर्कल रेट पे।
ये ध्यान Okay. करने वाली बात है थोड़ी सी। नाउ दिस इज 56/10 की अमेंडमेंट, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंगली वहां पे कर दी गई। एक अमेंडमेंट है पार्टनरशिप के बारे में, जो पार्टनरशिप से पैसे विड्रॉ करते हैं। पार्टनर ये मानते हैं कि जो पैसा मैंने डाला और जो मैंने निकाला उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, वो फर्म का टैक्स होगा। इनकम टैक्स वाले भी इस बात को मना नहीं करते अब, ना इस बजट में कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं जब ऐसा करोगे ना तो टैक्स मैं फर्म से ले लूंगे। तो सेक्शन 45(4) जो प्रेजेंट है उसको बदल के नया सेक्शन और नया 45(4)(a) डाला जा रहा है। 45(4) में आज की डेट में अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है फर्म से, और जब वो रिटायर के टाइम में उसको कोई कैपिटल एसेट दी जाती है, तो उस कैपिटल एसेट की जो वो दी जा रही है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू उस डेट को क्या है। फेयर मार्केट वैल्यू वही सर्कल रेट की वैल्यू, अगर वो लैंड एंड मूवेबल है और कोई और एसेट है, और जो बुक वैल्यू है उसकी cost of acquisition, that difference will be charged as a capital gain in the hands of the partnership firm. पार्टनर ले जाए लेकिन फर्म को टैक्स देना पड़ेगा उसके बारे में। सिमिलरली अगर इसके में अगर पार्टनर के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा है और उसको जाते समय आप 1 करोड़ 20 लाख का चेक दे देते हैं, तो 20 लाख के ऊपर पार्टनरशिप फर्म को टैक्स देना पड़ेगा। एज पहले वाले में तो यह है कि जब वो असेट ले गया तो फर्म ने असेट बेच दी एक तरह से उसको। दूसरे वाले केस में ये मान के चलना पड़ेगा कि फर्म ने उसको असेट तो नहीं बेची, लेकिन जो उसका असेट में हिस्सा था वो उसको उसके नाम के पैसे दे दिए। जब पैसे दे दिए टू दैट एक्सटेंट असेट की वैल्यू में आप उसका हिस्सा चला गया है। लेकिन सरकार इक्विटेबल है, जब ऐसा होगा तो 20 लाख रुपए जो पे आपका जो टैक्स लग गया है फर्म को, उसकी वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड कर दी जाएगी। जब भी वो असेट बिकेगी तो वो 20 लाख रुपए उसमें कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे सेक्शन 48। मैं एग्जाम्पल देके समझा दूं थोड़ा सा। सपोज करो एक फर्म ने एक असेट खरीद कर रखी, 25 लाख रुपए की कोई लैंड या बिल्डिंग ली थी 2008 में 10 में कभी लेकर रखी। आज की डेट में वो पार्टनर है कोई जिसके अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा है, रिटायरमेंट करते समय उसके अकाउंट में उसको 20 लाख रुपए दे दिए गए। तो जो 15 लाख रुपए इसे दिए गए हैं, ये मान के चला जाएगा कि ये 15 लाख रुपए का कैपिटल गेन है। फर्म उसके ऊपर टैक्स देगी, लेकिन फर्म की जो वैल्यू है बुक्स के अंदर जो पहले 20 थी 15 जोड़ के 15-35 हो जाएगी। जब वो बेचेगी जितने टाइम में तो उसको उसका नाम का बेनिफिट उसमें मिल जाएगा। दैट्स अ बेसिक लॉजिक व्हिच हैज बीन वर्कड आउट। आई बिलीव इट इज फेयर, इक्विटेबल, दैट वे दैट्स अ इशू व्हिच हैज बीन वर्कड आउट। Now, having said so, there is no change other than some public sector, other issues, etc. No change in income from other sources, no other salary, rental. There is no issue coming up. Small changes regarding what we call on in regard to the some senior citizen and some regard to the MAT, which I will talk later on, time permitting. Now, due date of filing return and reassessment and search cases. These are the three topics. One, due date of filing return continues to be 31st July, 31st October, 30th November, 139(1). कुछ केसेस में एनोमली थी, गोवा के केस में कुछ केसेस में एनोमली थी कि जो पार्टनर है जहां टीपी का ऑडिट होता है डोमेस्टिक लॉ में, उनकी ड्यू डेट को उसके साथ लिंक कर दिया गया फर्म के साथ में। आई एम नॉट टचिंग अप। लेकिन जो ड्यू डेट है आपको रिटर्न फाइल करने की, जिसका पीरियड जो अगर डेट मिस हो गई है क्योंकि आप 31 जुलाई को रिटर्न भरना भूल गए या नहीं भरी, 30 अक्टूबर को नहीं भरी और 30 नवंबर को नहीं भर पाए, तो उसमें हमें मिलता है कि भाई चलो असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने से पहले कभी भी भर लेना। अब वो पीरियड घटा 3 महीने से घटा के अब 31 दिसंबर हो गया। तो 31 जुलाई मिस कर दी तो 31 दिसंबर के बाद नहीं भर पाएंगे, अक्टूबर भर दी तो नहीं भर पाएंगे, नवंबर मिस कर दी तो 31 दिसंबर के बाद नहीं भर पाएंगे। सिमिलरली रिवीजन भी 31 दिसंबर तक ही कर पाएंगे। तो जुलाई वाले को 5 महीने मिलेंगे रिवीजन करने के लिए, अक्टूबर वाले को 2 महीने मिलेंगे, नवंबर वाले को 1 महीना मिलेगा। जब सरकार ने अपना आपका पीरियड घटाया ये रिटर्न फाइल करने का, रिवाइज करने का, सरकार ने अपना नोटिस इश्यू करने का 143(2) पीरियड का भी घटा दिया। आज की डेट में सेक्शन 143(2) प्रोवाइजो में लिखा है कि प्रोवाइडेड नो नोटिस अंडर दिस सेक्शन शैल बी सर्व्ड ऑन द असेसी आफ्टर पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर in which the return is filed. Now this 6-month period is being reduced to 3 months, or this amendment will be applicable from 1st April 2021. तो जो आपने रिटर्न अभी 10 नवंबर को भरी है 2021 की, और जो आप रिटर्न भर रहे हैं 15 फरवरी तक भरेंगे, अभी जो टैक्स ऑडिट वाली है आपने रिपोर्टें तो अपलोड कर दी हैं लेकिन रिटर्न पेंडिंग है, भरनी है, उन सबके नोटिस 30 जून 2021 से पहले सरकार को आपके पास भेजने सर्विस करने पड़ेंगे, यानी स्क्रूटनी के नोटिस आ जाएंगे। इसके साथ साथ सरकार ने यह भी कहा है
कि पीरियड ऑफ असेसमेंट इज आल्सो बीइंग रिड्यूस्ड फ्रॉम 1 ईयर टू 9 मंथ्स। आज की डेट में 153 में आपका असेसमेंट ईयर क्लोज होने के 1 साल तक किया जा सकता है, लेकिन जो 21-22 की रिटर्न होगी, 20-21 के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। 2020 जो आप आज की डेट में जो रिटर्न भर रहे हैं, इसकी असेसमेंट 31 मार्च 2022 तक जा सकेगी। लेकिन जो आप भर रहे हैं असेसमेंट, अब भरेंगे रिटर्न 21-22 की, 21-22 की जो रिटर्न भरेंगे अभी जो अगले 31 जुलाई को, अक्टूबर को और नवंबर को, उसका स्क्रूटनी का नोटिस आपके टेबल पे आ सकता है लेटेस्ट बाय 30 जून 2022, और उसका 143(3) का ऑर्डर आपके टेबल पर होगा 31 दिसंबर 2022। अब 21 महीने में आपका सारा काम खत्म, साल खत्म होने के बाद। बहुत लोगों ने पूछा रिकॉर्ड रखने की, ये रखने की, कोई चिंता नहीं है, 21 महीने के बाद कुछ नहीं है, सब काम खत्म हो गया आपका। दिस इज अ चेंज इन ड्यू डेट्स। नाउ कमिंग टू द सम इश्यू रिगार्डिंग द assessment and reassessment and search cases. 147, 148 में बहुत लड़ाई होती थी। रीजन टू बिलीव असेसिंग ऑफिसर लिखेगा, उसके बाद आपको अप्रूवल आएगा, 148 का नोटिस देगा, आप ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, ये करेंगे उसका। दैट प्रोसीजर इज बीइंग स्ट्रीमलाइंड। 3 चेंज मेजर हैं। एक तो पीरियड घटा के 6 से 3 साल कर दिया, लेकिन साथ के साथ 6 का 10 साल भी हो सकता है, जहां 50 लाख से ज्यादा की इनकम एस्केप असेसमेंट कर गई एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सम असेट। So there are 2 challenges which will come up. 3 से 1, 6 से 3 भी हो गया, 6 से 10 भी हो गया, कुछ मिला कुछ को भी दिया। प्रोसेस सारा चेंज कर दिया। Now the change, there is an entire change in the process. Now 147 will not be there issued. The assessing officer will issue for will on the basis of the suggestion received that income has escaped assessment, on the basis of risk management strategy of the department, mainly computer based, and then on that basis he can make an inquiry. After making inquiry, he will issue a notice to you asking information from you, take an explanation. After hearing explanation, he will pass an order, and before issue of when he issue a notice for reassessment filing a return, he will send that order along with that notice. So now when you have to file the return for reassessment, you will be well aware that what was the issue come up, what is the explanation, and what are the reasons why this is coming up. This will be the modus operandi, and this can be happen only when there is a risk management study. And secondly part is the when C&AG report is there, something like where C&AG carries out an audit of your assessment, and he comes to knowledge that there some income assessment has been wrongly done. Now this is by and large regarding reassessment. As regards search and survey cases, now after 1st April 2021, 153A, 153C assessment will not be possible. But search conducted before 1st February, April 2021 will continue to be governed by the existing provision of 153A, 153C. After 1st April 2021, it will be a normal process of assessment and reassessment, which I have explained to you, subject to only one exception, that now 3-year will get automatically reopened without issuing a notice and reasoning, etc., which happened under 153 and also. Similarly, in case of a search, if the income escaping assessment, there is a material which is found which shows that you have more than 50 lakh rupees of income has escaped assessment and which is represented by asset, then 10-year will get reopened. But one major change will be, now this reopening happen in search cases, not in survey cases. In survey is through 148. But now this survey, in survey also, automatically 3 years or 10 years will get reopened depending on the material which has been obtained. These 3-year, 10-year will also be applicable where the in search cash, money, bullion, jewelry is found belonging to the person other than the person who has been searched, or it will also happen where any document, books of account, or any other information is found pertaining to the person other than the person who has been searched. These are the major changes so far the assessment, reassessment, search cases, etc. are concerned. Now this brings me to the issue on TDS. I believe on TDS, there are 3 major changes. One is small, I will not say major, but still. 194P is being introduced, putting an obligation on the bank to deduct tax of the senior citizen who is 75 years or above of age, in case he has income from pension, and that pension get credited to that bank account, and that gentleman and that senior citizen has a one bank account only in that bank or nowhere else. In that case, the bank will deduct TDS based on the total income, including the interest income, and that senior citizen will not be required to file the return of income.
Now the next is the change is the TDS on purchase of goods. Last year, TCS was introduced on sale of goods, putting an obligation on the seller to collect TCS if he collect payment of exceeding rupees 50 lakh and his own turnover in the preceding year was 10 crore or more. Now, purchaser is required to deduct TDS if his turnover in the preceding year was more than 10 crore and if he is purchasing goods exceeding rupees 50 lakh. So then he need to deduct TDS at the rate of 0.1% at the time of purchase or at the time credit or payment, whichever is earlier. Since TCS provision says TCS will come into operation when TDS is not applicable. So where a purchase is suffering a TDS, then seller will not be required to collect TCS on that part. So it will be a benefit. But there can be a situation, a person may get caught on both sides. An MSME whose total turnover is say 9.5 crore and he makes purchases from a person whose turnover is more than 10 crore and the purchases during the year is more than 50 lakh. So now what will happen? That person will deduct, whenever he's making purchases, so his tax will get deducted. Because he is selling the goods to you and he as a seller, he will deduct TCS from you. But when he will sell this good to a person whose turnover is more than 10 crore, since he is making purchases of exceeding 50 lakh rupees, he will collect from you TDS. So both will happen, TDS and TCS to some person may happen. And this way, I think particularly this MSME sector and where the margins are thin in the profit, probably that may pose a challenge because some 0.2% of the turnover will go out. That's a issue which I think may pose a problem. Another thing to be noticed on TDS is that now you need to deduct, make sure that the person whose tax you are deducting is also filing the income tax return. In case such person is not filing, has not filed the tax return for the last 2 years, and the tax deducted was more than 50,000 rupees, then the TDS rate will go just double. TDS and TCS both. So if you are making a payment to a contractor and you made a payment of 1 crore, 2 crore rupee, deducted 2% on that TDS, and next year he comes up and then you ask him, tell me, I have deducted TDS of you on 2 crore, 2 lakh rupees last year. Have you filed the return or not? If he said no, then you have to deduct TDS at 4%, not 2%. You will ask, how do I know that he has filed the deduct and why he will share the income tax return? Now, income tax department provide a utility which banks have on cash withdrawal, etc. Because banks are also required to deduct TDS, collect TCS on withdrawal of cash exceeding 20 lakh rupees in case the person is not filing the return. So then in case he's not filing the return, then you will have a utility. Go to that utility, put the PAN number, you can get to know which return last year is filed. So if he has not filed the last 2 returns, then you have to deduct a TDS at a double the rate. These are changes. The last, I think there's some changes regarding advance tax. Now, advance tax on respect of dividend income need to be paid taken into consideration when the dividend has been declared. So in case you make first installment 15 June and by the time no dividend is declared, so you may not know. So TDS advance tax obligation will not be there. As and when it is declared, then you need to take into consideration. It is just like a capital gain, which there is a provision 234C that interest will be leviable only on that part which has been capital gain as the reason after that installment was due. So that's an issue. Settlement Commission has been abolished from 1st February 2021, same day. So all those applications which are pending as on that day, they will be now decided by the interim board, which will be constituted of 3 chief commissioners, but all other applications, nobody will be able to file it. Now there will be no escape route. Similarly, authority for advance ruling is being abolished, and instead thereof, a new board of advance ruling is being constituted. And in that board, both parties will be having a right to file appeal against that order. So if you file an application for advance ruling, and then the board will decide, if either of the person, assessing officer, or you are not satisfied with that ruling, you can go to the High Court in an appeal. I just wonder what will happen, whether it is really an advance ruling or another forum for the litigation on that part. And the third is that a new committee, dispute resolution committee, is being constituted in place of the settlement commission probably, but the threshold cap is too low. Only a person whose return income is 50 lakh rupees or less,
and the where the dispute is of income of rupees 10 lakh or less, only that person can go. I am just wondering, a dispute of 10 lakh will mean 3 lakh rupees of tax, and with the three chief commissioner committee, who will meet the expenditure of the council and the preparation, etc. One wonders why was such a schedule kept. And another is 281. As we know, last year an amendment was introduced of fake invoices, where 100% penalty for the person who supplies, who receives, and who abates. Now, in order to recover this penalty, 281 is being amended to give power that attachment can be initiated against such person who is liable for penalty under section 271. This penalty. These are the major changes in the finance bill, etc. Looking to the time constraint, I have tried to explain in all this possible manner. With time permitting, Rajesh, if there are few questions, I can take on that issue. Please, sir. Please, lot of time available, sir. सर मैं पढ़ूं सर या आप पढ़ेंगे सर क्वेश्चन? आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, मेरा गला थोड़ा मुझे आराम मिलेगा और लोगों को पता लगेगा आपका भाषण भी चल रहा है। अरे सर एक क्वेश्चन है एनोनिमस अटेंडेंट से, प्लीज शेयर योर व्यूज सर ऑन इंक्रीज इन टैक्स ऑडिट लिमिट, नो जीएसटी ऑडिट। देखिए क्या है, कुछ इशू बड़े सेंसिटिव होते हैं और 44AB का ऑडिट भी एक ऐसा है, और थ्रेशोल्ड की लिमिट 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई है, जिसमें 5% से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। अपरेंटली ए डैम्पनर फॉर द प्रोफेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार का शायद ऐसा सोचना है कि जो ट्रांजैक्शन कैश में नहीं करता तो उसकी ट्रेल मेरे पास अवेलेबल है और मैं सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। मेरा ऐसा मानना है ये सरकार का एक काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि 1984 से जब से टैक्स ऑडिट आया है और उसके बाद जब से सरकार ने ये सैंपल स्क्रूटनी जो केस इशू की है सर, कुछ केसेस को उठा के, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन हैज प्लेड ए मेजर रोल इन इंश्योरिंग कि जो सरकार के पास रिटर्न आती है, बैलेंस शीट आती है, बहुत ठीक आती है। मैंने क्योंकि सीए 1984 से पहले पास कर ली थी, उस समय मैं देखता था जो लोग रिटर्न भरते थे कैपिटल रेवेन्यू का नहीं डिफरेंस पता लगता था, टोटल रिसीट पेमेंट का डिफरेंस घटा कर रिटर्न भरती किसी को पता ही नहीं है। अब आज की डेट में टैक्स ऑडिट आने के बाद रेवेन्यू कैपिटल की क्या बात, एक एक माइन्यूट चीज की डिटेल आपके पास आ जाती है, कोई एसेट बेची है, कोई आपने रिवैल्यूएशन की है, ये की है। मुझे नहीं लगता कि जो कैश के अलावा भी जो ट्रांजैक्शन में लोग इस बात को पकड़ पाएंगे। आई डोंट नो हाउ द डिपार्टमेंट विल बी एबल टू ले, किसी ने अपने एसेट को रिवैल्यू करके उसको वर्कआउट कर लिया, पार्टनरशिप फर्म में कहाँ से लाएगी, टीडीएस के कंप्लायंसेस कहाँ से ढूंढ कर लाएगी सरकार उसके वर्किंग करने के बारे में। ये मेजर चैलेंजेस मेरे ख्याल से बने रहेंगे। आई डोंट नो कि हाउ गवर्नमेंट विल बी, बट स्टिल गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इसको थ्रेशोल्ड को 5 से 10 करोड़ कर लिया, तो बट मेरा ऐसा मानना है कि इट इज ए काउंटर प्रोडक्टिव सो फॉर रेवेन्यू इज कंसर्न, बट सम ऑफ द अदर मुझे थोड़ा सा पेज ये भी होता है कि ये मुसीबत हमने खुद बुलाई हुई है, क्योंकि हमने जो डेट बढ़ाने के लिए जो हम इतनी प्रेशर बिल्डअप करते हैं, यही एडवाइजेबल है, यही रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर केएम रॉय साहब है कैलकाटा से, प्लीज डिस्कस अबाउट सेक्शन 45 सबसेक्शन 4A। अभी बताया तो मैंने भाई 4A में यही तो है कि अगर कोई पार्टनर अगर पार्टनरशिप से रिटायर होते समय उसको अपनी जितनी कैपिटल है उसे एक्सेस अमाउंट मिलता है, जो डिफरेंस है दैट विल बी ट्रीटेड एज ए इनकम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड फर्म नीड टू पे टैक्स ऑन देयर ओन। केएम राय साहब अगर लाइन पे हैं तो माइक ऑन करके जरा क्वेश्चन पूछ, अगर और पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं इस बारे में। सर अमरजीत सिंह बिंद्रा जी का क्वेश्चन है, it is still not clear if someone invests 2.5 lakh in employee provident fund as employee contribution and 1.5 lakh in PPF, whether full exempt or interest on 1.5 lakh is taxable। मैंने बताया कि साहब नहीं होगा 1.5 का, मैंने शुरू में कहा था पीपीएफ का नहीं, पीपीएफ इज सेपरेट ओनली एम्प्लॉइज वाला। अभी तक सरकार की इच्छा ऐसी नहीं है इसके बारे में, आप अगर बता रहे हैं तो सरकार अगले सालों में सोच लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बिंद्रा जी का ही है, in case in lieu of LTC is not taxable for the assessment year 21-22, if yes what are condition। LTC का मैंने इसलिए जिक्र नहीं किया कि बहुत सारी चर्चा हो चुकी थी, पहले भी आया था। सेक्शन 10(5) में जो LTC मिलता है उसकी एग्जम्पशन है, और वो जो नवंबर में सरकार ने जो स्कीम अनाउंस की थी उसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देने के लिए एक्ट में अमेंडमेंट की है 10(5) में। उन्होंने कहा हम इसके रूल नोटिफाई करेंगे। फार्मूला सिंपल है, जिसको LTC मिलता है एम्प्लॉयर से 2018-21 की अपनी पॉलिसी के अंदर और उसने वो LTC अवेल नहीं किया
उस एलटीसी के बदले में सरकार ने कहा है कि 31 मार्च 21 से पहले आप परचेज कर लेते हैं और वो परचेज करते हैं जिसपे जीएसटी रेट 12% या उससे ज्यादा है, तो आपको उसकी जितनी परचेज करेंगे उसका 1/3 की एग्जेम्पशन मिलेगी, सब्जेक्ट टू आउटर लिमिट ऑफ 36,000 रुपीज। दिस इज द क्रक्स ऑफ द इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतुल चतुर्वेदी जी का फ्रॉम बॉम्बे। हाउ विल गुडविल बी डिफाइंड फॉर सेक्शन 32 ऑफ आईटीए? नहीं, 32 में कोई अमेंडमेंट नहीं की है। 32(1) में सिर्फ उन्होंने लिखा है इंटेंजिबल एसेट इंक्लूड नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट और एनी अदर सिमिलर नेचर अदर देन द गुडविल। सिंपल। तो उसमें डेप्रिसिएशन 32(1) में मिलता है ना, एनी एसेट ओन्ड बाय द एसएससी एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस शैल बी एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन पर द रेट प्रिस्क्राइब्ड। तो वहां लिख दिया, इसको नहीं मिलेगी बस इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन सर इन्हीं का ही है। सर हाउ विल कॉर्पोरेट with overseas business file tax return where due dates of tax payment in country of source is say March following the end of calendar year, since tax for Q4 of the previous year also will only be paid after due date has passed. Review is needed. That is your suggestion भाई, तो पुरानी बात, आज नई बात थोड़ी है, तो ये तो हमेशा हर एक की समस्या है, इसमें क्या सोचने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर लेकिन इसमें एक अगर शायद इनका सवाल है, रिटायरमेंट बेनिफिट दे दिया है, रिटायरमेंट फंड का बेनिफिट दे दिया है। जो लोग बाहर जाते हैं, हमारे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बन जाते हैं, वहाँ रिटायर फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वहाँ पे जो वो रिटायरमेंट फंड की जो वापसी होती है उस समय टैक्स लगता है, और जब यहाँ रेजिडेंट बन जाते हैं तो अक्रूवल बेसिस पे टैक्स लगने की वो रहती है। तो सरकार ने कहा कि हम इसका बेनिफिट सेक्शन 89A में आपको दे देंगे, आप उसकी रिकम्प्यूट करके आप उसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ए सीनियर सिटीजन एज मोर देन 75 years as on 31 March 2022 having only interest income on FDR 4 lakh and no other income, then TDS deduct by bank or not? पेंशन फंड होना जरूरी है, शर्त है कि पेंशन जरूर होनी चाहिए उसके पास। अच्छा, पेंशन 194B में बहुत लिखा है कि ये पेंशन जरूर होनी चाहिए उसकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर पंकज अनेजा जी पूछ रहे हैं whether TDS on goodwill will also apply on e-commerce traders and how it can be claimed if applied to non-resident e-commerce trader? नहीं, तो लगता है उन्हीं पे ना, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर 2% इक्विलाइजेशन लेवी की बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से। जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाते हैं उनके ऊपर 2% का वो लगाया, इक्विलाइजेशन लेवी लगाई है ना। जी 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 जी। Every person who collects any money from India, then that e-commerce operator by and large ऑनलाइन कोई पोर्टल यूज करते हैं, अब उनको जो कलेक्ट करता है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगा दिया कि वो 2% का इक्विलाइजेशन लेवी जमा कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन राकेश बब्बर जी का है गुड़गांव से। प्लीज क्लैरिफाई द डिसअलाउंसेस ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई इज एप्लीकेबल फ्रॉम व्हिच असेसमेंट ईयर? देखो उसमें लिखा है 1/4/2021, लेकिन जो मेरा ऐसा मानना है कि ये लिखा गया है क्लैरिटी इज हियर बाय बीइंग क्लैरिफाइड। जब क्लैरिफाइड वर्ड की यूज की जाती है तो ये मान के चलना चाहिए कि सरकार ये झगड़ा करेगी कि ये अमेंडमेंट पुरानी रेट्रोस्पेक्टिव मानी जाएगी। सर एक क्वेश्चन मेरे पास सुबह आया था, फोन ही आया था, उनका ये कहना है, पूछना है कि क्या एक पेपर प्रेजेंट करके लोकसभा में विदाउट डिस्कशन इन लोकसभा राज्यसभा सेटलमेंट कमीशन इमीडिएट बंद किया जा सकता है? इज इट लीगल? वी नीड योर व्यू सर। ये तो पेपर प्रेजेंट करके कर दिया, बिना पेपर के नहीं कर सकते थे? जो अनाउंसमेंट नवंबर में कर दी थी, आपका एलटीसी एग्जम्प्ट है। नहीं, उसकी तो नोटिफिकेशन नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। जो आपने उन्होंने नवंबर में ये कहा कि भाई एलटीसी आप अगर ऐसे करेंगे, तो उसका तो पेपर में पार्लियामेंट में भी नहीं कहा था, वो तो एक न्यूज़पेपर वाले के सामने आके बता दिया कि देखो ये है हमारा, ठीक है। इसी तरह उसने कहा भाई 20% तक का फ्लैट का डिफरेंस कर लो, हम टैक्स नहीं लेंगे, वो भी अगर ऐसे अनाउंस कर दिया, उसी डेट से कर दिया, क्या हुआ? कुछ नहीं। आज पास कर देंगे पार्लियामेंट में, अब पार्लियामेंट बिल में आ गया, पास कर देंगे। अब आपको 1 फरवरी 2021 से सेटलमेंट एक पेपर पढ़ के बंद कर दिया है, अब वो पास कर देंगे अप्रैल मई में कि 1 फरवरी 2021 से बंद है। अगर आपकी बात को मान लो कि सेटलमेंट कमीशन बंद नहीं हो सकता एक पेपर पढ़ के पार्लियामेंट में, तो एक पेपर पढ़ के बाहर आपको एलटीसी कैसे एग्जम्प्ट हो गया उस डेट से? गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग सर। अरे सरकार क्या है, खुदा भगवान है, सरकार में कोई फर्क थोड़ी होता है। कोर्ट में नहीं कहते मिलॉर्ड
क्यों कहते हैं हम जज को? पता नहीं मुंह से कुछ निकल गया तो पता नहीं हो गया क्या हो जाएगा. That's a issue. But देखो, that is a power which people enjoy. एक बार और देख लेता हूँ. वैसे तो सर अब कोई क्वेश्चन है नहीं है. I think there is no question pending now. Thank you, sir. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you, sir. Thanks a lot. I Thank you. request, sir, I request Rajiv Kohli ji, please present a vote of thanks, sir. Over to Kohli, sir. Thank you, Vedan sir. It's a pleasure having you here. Rajesh, in the introduction, is दो चार छोटी छोटी चीजें. Is a arbitrator, is a good media person, mediator, and has all these skills. उन्हें पूरे बजट के लिए भी सर ने सारी यूज कर लिया. जी सर. सर, तो ESA और PF के अंदर एक फंडामेंटल क्वेश्चन आ रहा है जो मैंने काफी देखा है कि आजकल सारा ऑनलाइन होता है. Many times the बैंक ट्रांजैक्शन फेल्स. यू में आपने 13th को डेबिट हो गया, 16 तारीख को वो रिवर्स हो जाती है एंट्री. So that is a proviso they have to add. In such cases, it should not be disallowed. So that is a major thing. And thanks for all the clarity, sir, you have given to us with all the remarks and the things you can have for NGOs and funds for having multiple trusts in order to have your exemptions as a tax planning tool. Thank you very much, sir, for your clarifications. Thank you, sir. Thank you once again, Thank you, sir. Holder and sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir.